joining with getting lessons from Mahabharata by Dr. Nirja Gupta. So there's a line of the sessions which are planned. Apart from that, plasma donation is going on, blood donation is going on, every other sessions are going on. My sincere request is, friends, this kind of sessions, at least in whole week, we are having sessions on professional development, where only we as a chartered accountant can take the benefit. But this Sunday sessions are something where apart from us, even our family members, our friends, and our colleagues can take a benefit. So my sincere request is that whenever you get any kind of information with respect to this type of sessions, feel free to share with all so that all can take the benefit of the same. So with this brief words, again, I welcome Dr. Alpa Yagnik ji. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Soon the audience will join. Let's start with the session. And now I request C. Anjali Choksi to introduce the speaker for the morning. Thank you, Chairman, for this wonderful morning. It's my privilege to introduce Dr. Alpa Yagnik. She's very close to my heart, and she's a regular faculty at Ahmedabad branch of ICAI since more than 5 years now. She's a true practicing naturopath since 2010. She has a Facebook follower of more than 1,500 followers. Her areas of specialization includes reversing diabetes, reversing thyroid, hypertension, cholesterol, PCOD, and other hormonal issues, treating skin disease, removal of kidney stones, immunity boosting, allergic issues, hyperacidity, gas and bloating, obesity, and many more. She has proudly conducted 30 plus workshops on alternatives to dairy and lifestyle disorders, delivered 70 plus seminars at various platforms like National Naturopathic Conferences, Torrent Power, Reliance Refinery, and many more. There are many achievements to name a few. She has written 3 books: Plant-Based Milk Products, a vegan health book; Disease Reversal Through Food; Disease Reversal Through Food recipe book. She has also published an article in Rethink Food, 100 plus doctors can't be wrong, a book published by Two Skirts publication in US. She is regularly featured in Ahmedabad Mirror and Nav Gujarat Samay for creating delicious vegan recipes to beat summer and winter recipes. And I am a regular follower of her. She does wonderful workshops, and one of them is this detox workshop. So the day when we attended this workshop, me and chairman decided that let's have it from Ahmedabad branch, and let's Ahmedabad branch members also get advantage of it. Apart from that, she's a wonderful person, very grounded, very humble, and I'm proud that I'm closely associated with her. Once again, I welcome Dr. Alpa Yagnik and looking forward to listen to her. Thank you so much. Uh, Alpaji, I think you are mute. No, you are not audible. Nah, no, no, no. No. I wait, let me call you. Wait. मिनट हाँ हाँ फरीથી કરી દઉં हाँ
हाँ. Yes, Albaban, now you're audible. No, now again not audible. Not audible. Thank you, friends, for joining. Till Alpa, I also request you that we are having all the sessions lined up till next Sunday, and even we are trying for new speakers. So, in case you know any speaker who is good and talking on spirituality, right? You know any good speaker who is there on health, right? Kindly do connect or drop a mail or message to me or either to Anjali Ben, right? So that we can give the benefit of the knowledge of that particular speaker to all the members at large, because it's a need of a time. And friends, whenever we post these videos on YouTube, it gets views in thousands. So why can't we as a chartered accountant be a medium to spread the ultimate needed health knowledge and spirituality knowledge to everyone? Yes, Alpaman. No, no, ma'am. Yes, ma'am. Now you can speak. No. Ma'am, can you try headphones, or you can remove the headphones if you're trying headphones? So the problem might be solved. Am I audible now? Yes, Yes, perfectly, perfect, perfectly. perfect, perfect. Okay, perfect, done. So thank you so much for a wonderful introduction, and thank you all the CA fraternity for believing in the true science of nature cure. So today's session we are going to focus more on how to detoxify and how to leave all the pills, leave without pills. That is what we all need, right? So how this is a very beautiful science and very down to earth. There is no hi-fi rules in nature cure principles. So let us start with the session. So basically, what is detoxification? Detoxification is nothing complicated. It is just the removal of all the toxins from the body. Toxins continuously deposit, right? Through our food habits, through our metabolism. पूरे दिन में हर रोज हमारे बॉडी में निरंतर काम करता, our body works throughout endlessly, right? So what happens is when we detoxify, all the toxins which get stored in the body are easily removed. So we do need the removal of toxins from mind, body as well as soul.
अब बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं कि अगर आपके घर में कोई भी जो आउटलेट है जिससे हमारा घर का पूरा कचरा निकलता है ना, वो क्लॉग हो जाता है, वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस? इट स्टिंक्स, राइट? इट स्मेल्स, और नहीं अच्छा लगता घर में। धीरे धीरे क्या होगा? ऑल द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इंक्रीज इन द हाउस. So the same thing happens in our body. You can see the two pipes. One pipe is blocked with unwanted dirt, unwanted toxins, right? And the another one is clean. अगर हमारे बॉडी में जो निरंतर कचरा प्रोड्यूस होता ही जाता है, उसका सही निकाल नहीं होगा तो क्या होगा? The system gets blocked, the system gets choked up. तो ये चॉकिंग से जो प्रॉब्लम बढ़ता है वो हमें बाहर दिखता है. जैसे कि generally what happens is in CA fraternity, I know lots of CA people. तो उन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, right? They have lots of gastric acidity, गैस वाला प्रॉब्लम, right? तो ये क्यों होता है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ही हम आज समझेंगे उसको. तो वो सारे प्रॉब्लम्स, दे आर नथिंग एल्स बट द बॉडीज inability to remove all the toxins from the inside. ठीक है? तो जो टॉक्सिन्स निकालते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं? There are lots of benefits we have when we detoxify our body. Nowadays detoxification is a very hi-fi word, है ना? बहुत सारे डिटॉक्स क्लिनिक भी खुल रहे हैं. But detoxification is very simple. You don't need to go to any hi-fi person to get the help, right? You can do it on your own also. So what are the benefits of detox? Weight, हमेशा we are always watchful for our weight. अरे यार ये मंथ में मेरे 2 kg बढ़ गए, ये यार मेरे like I am continuously gaining weight. So when you regularly detoxify your body, you can effortlessly maintain and manage your weight. You can improve your immunity. Now corona has made us aware कि यार कुछ भी करो, इम्यूनिटी पर तो काम करना ही पड़ेगा. इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम बहुत सारे इन्फेक्शंस हमें आ सकते हैं. तो we always worry about immunity a lot. Even we worry a lot for our kids. हमारे बच्चों के मतलब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो we always worry कि इसको बार बार बुखार आ जाता है, इसको बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है. तो क्यों? इसका इम्यूनिटी लो है ना? तो we can always improve our immunity by regular detoxifying. अगर कचरा अंदर जमा ही नहीं होता है तो detoxification is very simple. ठीक है ना? Clear glowing skin, we do crave clear glowing skin. सब लोग कितने, we spend a lot on cosmetics, we spend a lot on beauty parlors. So when our body is clean from inside, we don't need to go or we don't need to spend a lot to get the glow, है ना? ऐसे ही आपका अंदर से ग्लो आता है. कहीं भी कुछ भी ऊपर से लगाने से ग्लो नहीं आता. Beauty comes from within, right? So whatever you feed, whatever environment you have inside will always help to glow your skin. एनर्जी इंक्रीज होती है. कई बार ऐसे होता है कि वी आर ऑलवेज लो ऑन एनर्जी. मॉर्निंग उठते तो वी ऑलवेज फील कि यार आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, राइट? दिस इज वेरी कॉमन, इजंट इट? या एनर्जी शाम होते वक्त मतलब तब तक तो एनर्जी हमारी एकदम से डाउन हो चुकी होती है. तो व्हेन योर बॉडी इज डम्प्ड, व्हेन योर बॉडी इज नॉट क्लीन फ्रॉम इनसाइड, you will not get that energy, right? और एनर्जी हमेशा
See, there are continuous, our body has endless capillaries, जिससे हमारा पूरा सिस्टम कनेक्टेड है ना. जैसे सिंपल एग्जांपल दूं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कैसे होते हैं, वायर्स घर में, है ना, कि स्विच यहाँ है, फैन उधर है, पर यहाँ हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन वहां पे चलता है. द सेम इज देयर विथ आवर बॉडी. व्हेन योर बॉडी इज क्लीन, there is a nice flow of energy, nice flow of I'll say पूरे बॉडी में एक एक ऑर्गन कनेक्टेड है. सो पूरा ट्रांसमिशन जो एनर्जी का होता है वो अच्छी तरह से होता है ना. सो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी जनरली डोंट गिव इट दैट इम्पोर्टेंस, पर डिटॉक्स अगर आप रेगुलर वे से करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो कचरा इतना जमा होगा ही नहीं कि आपको डीप डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़े, है ना. देन व्हाट इज अनदर बेनिफिट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? योर थॉट्स बिकम क्लियर. यू आर एबल टू टेक एनी डिसीजन, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो डिसीजन भी हम अच्छे से क्लियरली ले पाते हैं. वी आर ऑलवेज लाइक बेस्ट डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में. कुछ भी खाए वो अच्छे से उसका डाइजेशन होता है व्हेन यू आर क्लीन फ्रॉम इनसाइड. फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है. ब्रेथ इज क्लियर. यू डोंट मतलब अगर स्वेटिंग होता है तो यू डोंट स्मेल. स्वेटिंग में बदबू नहीं आती. Because nowadays we do need, many of us need deo, कि whenever we are going for a meeting or anything we used to spray, right? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी because you are clean from inside. आपकी नींद अच्छी आएगी. You will be able to sleep peacefully, sound sleep आएगी. और belly fat, which is a major concern of each one of us. मैं कितना भी करूं, वेट कम होता है पर पेट के आसपास से चर्बी नहीं जाती. दिस इज कॉमन, राइट? तो दैट इज विसरल फैट. एंड विसरल फैट जो होता है ना, वो स्टबन होता है, वो बहुत जल्दी निकलता नहीं है बॉडी से. चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज करें, आपका ओवरऑल वेट रिडक्शन होता है, बट इंच लॉस वेस्ट के एरिया से नहीं आता. So this all indicates that your body is not clean from inside. Your body needs to detoxify, है ना. तो इतने सारे फायदे डिटॉक्सिफिकेशन के हैं. तो फ्रेंड्स, won't you think that it would be very complicated? ऐसा ही सोचते होंगे ना कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज होगी. No, it is very simple. Nature has given everything in a simple way. अच्छे से घर पे रह के भी कर सकते हैं आप डिटॉक्सिफिकेशन, इफ योर प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी सीरियस, राइट. हमारे बॉडी में डिटॉक्स के चैनल्स होते हैं. नाउ दिस डिटॉक्स चैनल्स आर 5. फर्स्ट इज स्टूल. तो डिटॉक्सिफिकेशन स्टूल से होता है. दूसरा है स्वेट, जो हमारी स्किन से होता है. आवर स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो हमारी स्किन है. एंड वी हार्डली टेक केयर ऑफ आवर स्किन. उस पे इतना सारा लगाते हैं कि सारे कैपिल, उसके जो पोर्स हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं. बॉडी इज अनेबल टू. मम्मी ने humble request to please mute yourself. स्वेटिंग से मैक्सिमम कचरा हमारा निकलता है ना. तो हम इतना सारा लगा के उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं. वी अप्लाई सो मेनी कॉस्मेटिक्स that all the pores get blocked and our
अनवांटेड वेस्ट विच कम्स आउट फ्रॉम द स्वेटिंग, स्किन से, स्किन के पोर्स से जो बाहर निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है, ठीक है ना. देन द थर्ड चैनल इज यूरिन. किडनीज जब हमारे स्ट्रांग होते हैं तो किडनीज एंड लीवर स्पेशली, दे बोथ आर द फिल्टर्स ऑफ आवर बॉडी. दे यूज टू फिल्टर अनवांटेड थिंग्स आउट ऑफ द बॉडी. जो काम का है उसको रखते हैं, अनवांटेड को बाहर निकालने की वो कोशिश करते हैं. सो वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ अवर लीवर एंड किडनीज, है ना. तो यूरिन इज अगेन वन ऑफ द detox channel. When it is blocked, we always have an issue. फिर ब्रेथ, हमारी सांस से काफी कचरा निकलता है, एक्सक्रीशन, जो गैसियस वेस्ट होता है वो ब्रीदिंग से बाहर निकलता है ना. देन द फोर्थ इज माउथ. माउथ वो रेयरली हमारा डिटॉक्स वे में यूज होता है, बट यस, माउथ इज अगेन द डिटॉक्स चैनल. तो ये 5 चीज ऐसी है जिनसे हमारी बॉडी का सारा कचरा बाहर निकलता है. नाउ व्हेन दिस वेस्ट, व्हेन दिस चैनल्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजन, आवर बॉडी इज नॉट एबल टू डिटॉक्सिफाई इन द प्रॉपर वे, है ना. तो स्टूल, मतलब स्टूल का हमारा चैनल जब ब्लॉक होता है तो हमेशा या तो डायरिया आपको हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना. तो ये तो जब होता है तो देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन दैट डिटॉक्स चैनल. तो ये जो हमारे 5 जो चैनल्स है उनको अगर हम सही से उनके साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं तो योर बॉडी विल नेवर हैव एनी इश्यू, दैट इज फॉर श्योर, राइट. तो दूसरा है स्वेट. अगर स्वेट चैनल जो हमारा स्किन से रिलेटेड है, जब वो ब्लॉक होता है तो आवर बॉडी विल गिव फीवर का सिम्टम, है ना. बुखार आ जाता है तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव फीवर वी ऑलवेज पॉप अप द पिल, एंटीबायोटिक, बुखार कम होने की दवा खा लेते हैं. तो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने एक गोली जो खाई जिससे बुखार कम हो गया, क्या सही में वो बुखार को ट्रीट करा हमने? नहीं ना. वी हैव नॉट गॉन टू द रूट कॉज. जैसे कि आप सीए है तो कोई भी बैलेंस शीट देख के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है ना. So it reflects, the balance sheet reflects everything. So for us, this detox channel and the symptoms reflect what is there inside going on which is wrong. तो क्या गलत हो रहा है वो हमें आराम से पता चल सकता है. तो what happens is popping a pill to reduce the fever is not a cure. What do we need to do? हमें उस टाइम में कुछ भी गर्म थोड़ा वार्म सिप करना चाहिए और इतना फैन बैन बंद करके, विंडोज बंद करके उसको हमें ब्लैंकेट ओढ़ के सोना है. आपने देखा होगा कि जब बुखार आता है और पसीना होता है तब हमारा बुखार कम होता है, राइट. Once we start sweating, fever reduces. So what are we doing? We are cleaning the detox channel which is related with sweat. पसीने से जो related channel है उसको हम activate करते हैं, है ना, ताकि पसीना होता है और बुखार डाउन जाता है. Then the third is urine, right? तो रेगुलर अगर किसी को यूरिनेशन अच्छे से राइट फ्लो में नहीं होता, राइट क्वांटिटी में नहीं होता, तो बॉडी स्टार्ट स्वेलिंग, कहीं ना कहीं सूजन आता है ना. तो दिस इंडिकेट्स दैट योर यूरिन वाला चैनल है, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. जब बदबू आती है, मतलब ब्रीदिंग से आपका कंजेशन है, तो यू कैन कोरिलेट कि आपको सर्दी कफ है, अंदर कोई भी प्रकार का कंजेशन है इन योर लंग्स, राइट, अपर रेस्पिरेटरी
ऑर्गन्स में। तो उस टाइम में हमें उसको कैसे हम फंक्शन इम्प्रूव कर सके उस पर वर्क करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स लेके कफ एंड कोल्ड को सप्रेस नहीं करना है। अगर एंटीबायोटिक लेके आपने सप्रेस करा है तो इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। जो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है दे आर प्राइमरी प्रॉब्लम्स। when you address those primary problems, these problems will not go to secondary level. पर अगर हमने इसको एड्रेस नहीं करा, उसको दबाने की कोशिश करी, तो what will happen is it will go to the next level. नेक्स्ट लेवल में जाएगा और आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, है ना। सो पॉपिंग अप द पिल्स इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमारा बॉडी एक ही रात में सारे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर देता। Our body is very smart. We have our own best doctor sitting inside. वो डॉक्टर से हमने कनेक्शन दूर कर दिया है। जब ये कनेक्शन हम दूर कर देते हैं ना, we always go without having any vision। हम कहाँ जा रहे हैं, अपना हेल्थ कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पता नहीं चलता। सो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, ब्रेथ का चैनल कहीं पे भी कंजेशन है तो कफ कोल्ड वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच लीड्स टू ग्रेजुअली साइनस है, वो सारे इश्यूज उसके बाद में आते हैं। देन माउथ का जो है चैनल वो रेयरली डिस्टर्ब होता है, वॉमिटिंग वगैरह जब होती है तो, पर जनरली वो इतना नहीं होता है, इट इज रेयर। But these are the major detox channels of our body जिससे हमारा बॉडी क्लीन होने की कोशिश करता है। जब एक्सट्रीम कंडीशन होता है तभी वॉमिटिंग वाला इश्यूज बढ़ते हैं, राइट। तो लेट इट बी, लेट योर इनर डॉक्टर हील इट। वो कचरा है, एक्सेस जमा हो गया है, निकल जाएगा, है ना। सो यू नीड नॉट टू वरी विद दिस प्राइमरी सिम्टम्स। अब ये डिटॉक्स चैनल हमारी ब्लॉक क्यों हो जाती है, ये कॉमन क्वेश्चन आएगा, है ना। हम सबको ऐसे लगेगा कि यार ये तो ब्लॉक तो होती कैसे है, अगर हुई है तो क्या हमने गलत करा जिससे ये चैनल्स हमारी ब्लॉक हुई। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? इट इज रॉन्ग फूड। अगर आपका खाना सही नहीं है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, wrong timing of food and wrong quantity of food, है ना। कई बार क्या होता है कि we are so foodie, we all believe what our tongue tells, right। टेस्ट को हमने इतना प्राधान्य दिया है कि कई बार अनवांटेड थिंग्स हम उसको रेगुलरली हमारा इंटेक होता है। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? We need to eat correct food। जैसे कि अभी आप कुछ भी पैक्ड बाजार में से लेके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क यू टू रीड द इंग्रेडिएंट्स, है ना। आप कोई भी चीज लेके आते हो बाहर से तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। रीडिंग इंग्रेडिएंट्स विल मेक यू मोर कनेक्टेड, है ना। तो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज जितना हो सके पैक्ड फूड को कम लाइए। वी डोंट नीड पैक्ड फूड्स, राइट। whatever comes from the nature, they are best for our body। पहले के जमाने में कहाँ इतने रोग थे, नहीं थे ना। तो अभी क्यों इतने बढ़ रहे? एवरी हाउस इज डायबिटिक पीपल, एवरी हाउस इज हाइपरटेंसिव पर्सन, एवरी हाउस हैज समवन हु हैज हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो हमने कहीं तो गलत करा ना, कहीं तो हमने गलती की ना। तो दिस रॉन्ग थिंग्स विच वी हैव स्टार्टेड, तो उसको सही करना है। वी हैव इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। पहले के जमाने में दूध यूज होता था, बट द एनिमल्स वेर नॉट एक्सप्लॉइटेड
Nowadays animals are exploited like anything. पहले के जमाने में जो खेत में पकता था अनाज वो सीधे घर पे आता था, कहीं पे भी वो मिल में नहीं जाता था. Now what happens is whatever we grow on the farms goes to the mill for refining, polishing process, right? तो वो रिफाइन पॉलिश होने के बाद वो हमारे घर में आता है. तो वो जो रिफाइनिंग पॉलिशिंग जो प्रोसेस है उससे जो ऊपर का न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है जिसको हम ब्रान बोलते हैं, ब्रान है, फिर अंदर जो जर्मिनेशन, कोई भी सीड का जर्मिनेशन होने के लिए उसके अंदर जर्म पार्ट होता है जिससे नया स्प्राउट होता है. तो व्हेन वी पॉलिश एंड प्रोसेस अवर ग्रेन, these two are removed. When these two are removed, definitely we are going to lack nutrition in our body over a period of time. So whatever body needs, our body needs nutrition dense food, which comes, that nutrition should come from nature, not by popping multivitamin pills, right? Popping up the pills is not a solution because this machine is very smart machine, right? उसके पुर्जे हमारे फैक्ट्रीज में नहीं बने हैं. God have designed this machine and it is super intelligent and it needs right kind of fuel, right kind of nutrition to function, है ना? तो उसके लिए कहीं से भी जितना हो सके go for unprocessed, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे कि कोई भी अनपॉलिश राइस की बात करूं, अनपॉलिश राइस टेक्स लॉन्गर टाइम इन कुकिंग, राइट, कंपेयर टू द पॉलिश्ड वन. पॉलिश्ड वन फटाक से आपने उसको गैस पर रखा, थोड़ी 5 मिनट में वो कुक हो जाएंगे, राइट. बट अनपॉलिश्ड राइस टेक्स अराउंड 30 मिनट्स इन कुकिंग. ये 30 मिनट्स कुकिंग में लगे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये बाहर नहीं पक पाता तो हमारे बॉडी में क्या होगा. नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, है ना. Why it takes longer in cooking? Because the outer layer is intact and that is hard, right? जब हम उसको पॉलिशिंग प्रोसेसिंग से रिमूव करते हैं तो पूरा उसका न्यूट्रिशन निकल जाता है. जब न्यूट्रिशन निकल जाता है तो हमारे बॉडी में क्या मिलता है? We are always lacking nutrition, right? कई बार हम लोग गलत कॉम्बिनेशन से खाते हैं. 90% पीपल, आई वुड से, सबके घर में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, ढेर सारे फ्रूट्स भी खाए जाते हैं. पर हम लोग फ्रूट्स कब खाते पता है? वी ऑलवेज यूज टू ईट फ्रूट्स. रात को डिनर कर लिया, फिर आराम से सब बैठ के टीवी देखते देखते फ्रूट्स कट करके हम खाएंगे, है ना. दैट इज टोटली रॉन्ग. Fruits are the best cleansers for our body. उससे इतना फाइन क्लींजिंग इफेक्ट मिलता है. तो हम खाना खाने के बाद खाएंगे उसको तो ना ही हमें उसकी बेनिफिट मिलेगी और ना ही हम खाना जो खाया है उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा. तो what happens is our body is confused. We will not get the benefit of anything. ऊपर से वो लोड होके फर्मेंट होगा जिससे गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगा, वो क्रॉनिक हो जाएगा आपको. एंड जनरली बहुत कम लोग ऐसे होते कि वी आर लाइक फिटनेस के लिए एक्सरसाइज पार्ट हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव रखने का काम करते हैं. अदरवाइज वी ऑलवेज हैव अवर वर्क सिटिंग एट द डेस्क, राइट. टेबल चेयर का ही काम है. तो टेबल चेयर का काम है तो हमारा फूड भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए. हम लोग क्या करते पता है? वी ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट व्हाट अवर फोरफादर्स यूज्ड टू ईट. हमारे दादा तो ऐसे खाते थे तो इतना तो घी खाना ही पड़ेगा, इतना तो ये खाना ही पड़ेगा. पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके दादा जितना काम, मेहनत वाला काम करते थे वो आप करते हैं? I don't think so, right? So in that way we are not imitating them, but we just imitate for the food habits. तो वो लोग पूरा
टाइम खूब चलते थे, दे वर वर्किंग इन द फार्म्स, घर का पूरा काम करते थे, तो उस टाइम में उनका डेफिनेटली डाइजेशन इतना स्ट्रांग होगा कि अगर हाई कैलोरी वाला फूड खाया है तो दे कैन डाइजेस्ट, बट वी कैन नॉट, है ना। तो हमारा कैसा काम है उस हिसाब से हमें खाना चाहिए। एक सिंपल सी टिप दो, अभी हमारा काम क्या है, ब्रेन वाला काम है, दिमागों वाला काम है, क्योंकि बैठ के जैसे कि आपको भी पूरे नंबर से टैकल करना है, राइट। तो दिमाग से जो बंदा काम करता है उसको हाई कैलोरी फूड नहीं चाहिए, उसको डेंस न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए, और गुड, जो जिसमें गुड फैट्स होते हैं, गुड फैट्स, राइट, नॉट ओनली कैलोरीज, जो हमारे लाइक ब्रेन के फंक्शन के लिए काम लगे, वैसे ही गुड फैट्स, एंड गुड फैट्स शुड कम फ्रॉम कोकोनट है। सिंपल सी एग्जांपल है, कोकोनट इज अ मीडियम चेन फैट। अगर आपने इक्वल राइट अमाउंट में कोकोनट खाया है, यू विल ऑलवेज बी हाई ऑन योर brain function, because it is medium chain fats. Body readily uses that fat for the function. और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कई बार मेरे पास ऐसे भी बंदे आते हैं कि मैडम हमें तो कोलेस्ट्रॉल है तो हम कोकोनट नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। कोकोनट इज अ मीडियम चेन फैट, इट डज नॉट गो इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, है ना। अगर आपने तेल खाया है, दूध वाला कुछ भी ज्यादा खाया है, तो यस इट गोज इन द होल डाइजेशन और वो फिर आपके बॉडी में स्टोर होगा। बट कोकोनट इज अ मीडियम चेन फैट विच इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन द फंक्शंस, इट रेयरली गेट्स स्टोर्ड। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर और इतनी साइज का आप रेगुलर कोकोनट खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो HDL के नाम से हम जानते हैं, तो HDL इम्प्रूव होता है ना, और LDL कम होता है। तो HDL इम्प्रूव करना वी ऑल वांट, राइट। तो रेगुलर फ्रेश एयर वॉक एंड रेगुलर राइट अमाउंट ऑफ ईटिंग कोकोनट विल इंक्रीज योर HDL। सो कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट गड़बड़ आया है तो से इट इज जस्ट अ सिग्नल योर बॉडी हैज गिवन, ठीक है ना। छोटे छोटे सिम्टम को आपने ध्यान नहीं करा, इसलिए वो एक अलग लेवल पर गया। सो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। रेगुलर exercise and right kind of food with the right kind of thoughts will definitely clear and detoxify the all unwanted toxins loaded in the body. फिर सन, वी हार्डली गो इन सन, राइट। हमारे घर में अरे यार यहाँ पे तो इतनी गर्मी है कि घर से हम बाहर ही नहीं निकलते, दैट इज द कॉमन डायलॉग वी ऑल स्पीक। पूरा टाइम घर में ही रहते हैं, वी डोंट गो आउट इन द सन, वी डोंट गो आउट इन एयर, राइट। सो दिस इज द रीजन वी ऑलवेज हैव डेफिशिएंसी इन विटामिन डी, एंड विटामिन डी इज द मेजर हार्मोन रेगुलेटर विटामिन। हमारे बॉडी के छोटे से छोटे हार्मोन का राइट फंक्शनिंग करना है तो वी डू नीड सनलाइट। अब पिल्स, विटामिन डी बहुत कम है, यस थोड़ा सा अप ला दो, बट नॉट ओनली विद द पिल्स, है ना। अगर जरूरी है, बहुत कम लेवल है, पिल्स से आपने सप्लीमेंट से आप कर दिया, ओके, बट डोंट फॉरगेट योर सन। हम सूरज की पूजा करते हैं, सन इज अवर गॉड, राइट। तो जब हम सन को भगवान का दर्जा दिया है तो उसके पीछे भी हमारा एक साइंस था। सिटिंग इन द सन, एक्सपोजिंग योर बॉडी, योर सेल्फ इन द सन regularly for 20 to 30 minutes will always protect your body from any harmful problems. चाहे वो कोरोना हो, चाहे कफ एंड कोल्ड हो, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे हेयर का प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन का प्रॉब्लम हो, चाहे बोन का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बट सिटिंग इन द सन, वी डोंट नीड द harsh heat of the sun, we need the light of the sun, right? So sitting in the sun, regularly exposing yourself in the sun
gives a wonderful help for your body, right? Then comes negative thoughts. Continuous हम negative, ये मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर पाती, ये ऐसा होता है. So no, just come out of this negative thoughts and just start thinking positive that you can do everything. This is possible. I can easily detoxify my body. I can reverse my condition. I am the best help. If you start thinking it that way, you are giving the best help to your body. See how any chronic diseases start. सबसे पहले शुरुआत होती है, एज आई टोल्ड यू, कि जो हमारे डिटॉक्स चैनल जो है उसको ब्लॉक, उसमें जो ब्लॉक होता है, दे एट दैट टाइम वी हैव कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग वाले इश्यूज, राइट? नाउ व्हेन वी सप्रेस दिस प्राइमरी सिम्टम्स, जब हम इसको दबाते हैं, कफ एंड कोल्ड हुआ, फटाक से एंटीबायोटिक ले ली, बुखार आया है, एंटीपायरेटिक ड्रग ले ली, डायरिया है, लोपामिड ले ली, डाइजेस्टिव इश्यू है जैसे कि गैस एसिडिटी हुआ तो इनो पी लिया, डाइजीन ले ली, पैंडी ले लिया, है ना, वॉमिटिंग है तो भी हमने उसको सप्रेस कर दिया. When we are regularly doing this, what happens is our body थक जाता है, gets tired. Then the symptoms, all these problems transmits to the next level, है ना? तो नेक्स्ट लेवल वाले प्रॉब्लम्स क्या है? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हेयर फॉल है, अर्टिकेरिया मतलब स्किन का प्रॉब्लम है, सोरियासिस जिसको हम शीरस बोलते हैं, थायराइड है, अस्थमा, एलर्जीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का ब्लॉकेज, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ओबेसिटी, साइनस, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स सेकंड है. जब इसको भी हम रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते इन द नेचर्स वे, देन व्हाट हैपेंस इज अल्टीमेटली वी लैंड टू द लास्ट स्टेज which are very disastrous for our body, for our health. तो कैंसर है, एड्स है, पार्किंसन है, ट्यूमर है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये सारे टर्शियरी स्टेज वाले प्रॉब्लम्स है ना. आईटीज वाले सेकेंड स्टेज वाले हैं, गैस्ट्राइटिस, डर्मेटाइटिस, है ना, साइनूसाइटिस, आर्थराइटिस. तो जब इसको हम दबा के नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम बढ़ते हैं? ओमा वाले, जिसमें डीके होता है बॉडी, राइट? सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग योर सिस्टम, keeping your body happy will always help you to reverse from any stage you are in. मेरे पास थर्ड स्टेज वाले कैंसर पेशेंट, फोर्थ स्टेज वाले कैंसर पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस वाले, आईबीएस वाले, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वाले, तो इनन्यूमरेबल. देयर आर thousands of people who are off their medicines now. I am not doing any magic. I'm just following whatever knowledge nature has given, and through that knowledge we can definitely help to reverse any condition you are in, है ना? बहुत सिंपल है. तो easy, simple, what I follow is how we can detoxify. I'll just go in brief. I do have lots of detox workshops जो ऑनलाइन भी होते हैं, and 3 day का detox, 7 day का detox. If you people are ready, we can definitely plan and we can go for it, right? जिसमें when in those programs I share this knowledge in depth, right? So that you can understand the science behind all these things, and you can easily use them at home and you can help your own self, right? So coming back to that vibrant health is very simple. नेचर के सारे रूल्स इतने सिंपल हैं, कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सीधा हमारा कनेक्शन नेचर से है, एंड नेचर वी ऑल नो दैट शी इज अवर मदर, राइट?
तो जब हम माँ की गोद में जाते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचता, सारे प्रॉब्लम्स के हल मिल जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं. So this is the knowledge of Mother Nature which today I am going to share, but it won't be in depth, but definitely we can plan out if you are all ready. So what are the ways to detox? जिन लोगों को chronic constipation है, तो उनके लिए एनिमा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसको आयुर्वेद में हम बस्ती भी बोलते हैं. बस्ती मेडिसिनल भी होती है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सादा पानी से भी वाटर एनिमा भी हो सकता है, राइट. व्हाट हैपेंस इज कि सारे बीमारी का जड़ पेट है ना, हमारा डाइजेशन है. जब वो पूरा चैनल हमारा डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, एनस में एंड होता है, वहां पे कहीं पे भी बीच वाला कोई पाथवे नहीं है, राइट. सीधा यहाँ से होके एनल ओपनिंग में एंड होता है. तो वो ट्रैक जब हमारा सही काम नहीं करता, वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज, है ना. अब गट हेल्थ का भी शायद आपने गट हेल्थ का वर्ड भी सुना होगा. गट इज अवर सेकेंड ब्रेन, राइट. हम जो भी खाते हैं, जैसा भी उसका डाइजेशन होता है, अकॉर्डिंगली हमारे अंदर, हमारे सब लोगों के अंदर 1.5 से 2 किलो बैक्टीरिया, वायरस, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, सब ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में है ना. तो अगर आपकी गट हेल्थ सही है, हेल्दी है, तो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स अंदर होंगे विच आर फ्रेंड्स फॉर यू, ठीक है ना. अगर गट हेल्थ आपकी सही नहीं है, तो द ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो दे हार्म यू, है ना. तो वो हमारे ही हाथ में है कि हमें अंदर के ऑर्गेनिजम्स, उनकी कॉलोनीज हेल्दी, जो हमारे फ्रेंड्स हो वैसी ग्रो करवानी है, कि हार्मफुल हो माइक्रोब्स वैसी ग्रो करवानी है. बिकॉज वॉट एवर न्यूट्रिशन, वॉट एवर फूड वी ईट, उनका डाइजेशन होके, एब्जॉर्प्शन से लेके, इम्यूनिटी से लेके, पूरे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन रेगुलेट होता है हमारे गट पर, है ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर. अगर वो सही नहीं है, वी ऑलवेज हैव गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये सारे प्रॉब्लम्स, उसको रेगुलराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एनिमा इज वन ऑफ द सिंपल टूल विच वी कैन यूज, राइट. इवन 21 डेज तक भी एनिमा ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम यू कैन गो विथ एनिमा. फिर बहुत सिंपल और बेस्ट इफेक्टिव वे इज कोल्ड पैक एंड मड पैक. कोल्ड पैक में कुछ भी नहीं है, एक पतली सिंगल बेड की चादर हो, उसको फोल्ड करो, पानी में लपेट के, पानी में डुबो के, उसको थोड़ा निचोड़ के पेट के ऊपर लपेटना है, ठीक है ना. यू नीड टू कीप इट फॉर 30 मिनट्स. अभी जैसे कि विंटर्स है, विंटर्स में ठंडी है, सो वी कैन नॉट डू दैट. Mud and cold is advisable after March, February end to November और October end. तब तक हम कोल्ड पैक, मड पैक रेगुलरली कर सकते हैं. एंड दिस ऑलवेज हेल्प्स योर सिस्टम टू डिटॉक्सिफाई, क्योंकि आपका अनवांटेड कहीं पे भी कंजेशन है, उसको निकालने में बेस्ट हेल्प मिलता है. एंड यू कैन डू इट एट होम, राइट. देन फास्टिंग. फास्टिंग के लिए इतने सारे मिथ हो गए हैं कि नहीं, फास्टिंग तो नहीं करना चाहिए. नो, फास्टिंग यू शुड गो फॉर. आप रेगुलर फास्ट करते हैं, जैसे कि हमारे लाइक स्क्रिप्चर्स में, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे लाइक कोई भी रिलीजन में फास्टिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है. तो ये फास्टिंग अगर राइट वे से साइंटिफिकली आप करते हैं, बॉडी विल ऑलवेज गेट बैक, राइट. You will definitely improve your health, you will definitely reverse your health with regular fasting. But that fasting should not be with chips and milkshakes and lots of fried food. Nahi. Just juice fast a day,
just have fruit fast a day, salad fasting, different types के fasting होते हैं, water fast कर सकते हैं. तो at least once a week you should have a fast, है ना? आप करके देखो and let me know, because I know कि उससे कितना फायदा होता है. Just do it. See, you don't need to starve. Starvation and fasting is totally different thing. You don't need to starve. I'm not saying कि आपको starvation mode में जाना है, नहीं. But scientifically आप fast करते हैं तो पूरे आपके system clean हो जाएगी. क्योंकि आप एक example दूं कि आप continuously 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाया ही करते हैं, है ना? तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर है, हीलिंग एनर्जी है, दैट हीलिंग पावर इज कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड इन डाइजेशन, है ना? तो जब ये कंटिन्यूअसली डाइजेशन में ऑक्यूपाई ही रहेगी तो हीलिंग का काम कैसे होगा? हीलिंग का काम नहीं होगा. हीलिंग स्टॉप्स व्हेन इट वर्क्स फॉर डाइजेशन. पर अगर आपने सिंपल आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, शाम को 7 बजे खा लिया तो आप 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा तक पानी ही ले, लिक्विड ले सकते हैं, कोई सॉलिड फूड नहीं. ठीक है ना? दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर आप ये करते हैं तो आपने जो 7 बजे खाया है वो 6 घंटे में मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाएगा. रेस्ट 6 to 8 hours your body will get the time to heal, right? So our healing doctor becomes active and helps in the healing or reversing the issue, right? फिर another thing is dry brushing. Dry brushing helps to clean the skin, because skin is, as I have told you, skin is the largest excretory organ. सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा स्किन है. अगर उसके एक एक पोर, एक एक छिद्र साफ है, खुले हैं, तो बहुत सारा कचरा निकल जाएगा. स्किन हमारी थर्ड किडनी का काम करता है ना? सो ऑलवेज वर्क ऑन ड्राई ब्रशिंग. सिंपल खुरदरा खादी का कपड़ा हो या रफ कोई भी कॉटन क्लॉथ है, उसको ड्राई स्किन पर रब करो एंड just rub it properly और फिर नहा लो. You don't need to apply soap every day. ठीक है ना? जितना आपका स्किन पोर्स ओपन होगा उतना ही आपका फायदा होगा. अगर अभी जैसे कि ड्राइनेस बढ़ रही है, कई लोगों को विंटर है तो विंटर में ड्राइनेस बढ़ती है, तो सिंपल अप्लाई कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, या इफ यू हैव एनी एसेंशियल ऑयल यू कैन यूज, और no cream, no moisturizer, nothing. Regular dry brushing and simple application of this lighter oils will always make your skin that lustrous, है ना? क्योंकि क्या होता है, हम जो भी चीज लगाते हैं स्किन पर वो डायरेक्ट स्किन के पोर्स से ब्लड की कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. So whatever fragrance, whatever chemicals we apply on our skin through cosmetics goes in the blood circulation, which always affects the hormone health. ठीक है ना? Unwanted fragrance, जो लोग बहुत सारी खुशबूदार चीजें यूज करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा हार्मोनल इश्यूज होते ही हैं, है ना? Then regular sun bathing, as I have explained, sunlight is made up of 7 different colors. And each of these colors have different wavelength, and these wavelength help our body for the right functioning, है ना? जैसे कि मैं कई बार सनचार्ज वाटर भी यूज सजेस्ट करती हूँ टू मेनी पीपल. जैसे कि इफ यू आर हैविंग सनचार्ज ब्लू ग्लास बॉटल का पानी पीते हैं जो सन में चार्ज हुआ है, तो इट विल ऑलवेज हेल्प योर बॉडी टू रिड्यूस एक्सेस हीट, राइट? If your digestion is on very low side, if you are having orange sun-charged water, it will always tone up your digestion. It will always build that muscle mass. So depending on the issues, we can always get the best help from sun, right? Exercise, as we all know, exercise moves your lymphatic system.
जैसे कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारा हार्ट है ना, पर ब्लड जैसा ही एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है जो हमारे सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का कचरा इकट्ठा करके निकालने की कोशिश करता है. सो देयर इज नो अदर ऑर्गन टू मूव दिस लिम्फ. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए आवर बॉडी वी नीड टू मूव अ लॉट, है ना. रेगुलर वॉक है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विच मूव्स योर lymphatic system, which activates it, it is the best help we can do. Even exercise helps to improve our mood, to improve our good happy hormones, right? So exercise for at least minimum 30 minutes and max for 1 hour is mandatory. जिसको एंटी एजिंग, हमेशा यंग ही रहना है, एंटी एजिंग ही वे से जीना है, उनको ये मैंडेटरी है. देन स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप अफेक्ट्स योर हेल्थ, राइट? बिकॉज स्लीप इज द टाइम व्हेन ईच एंड एवरी रिपेयरिंग वर्क गोज. जो पूरे बॉडी में पूरे दिन में जो टूट फूट हुआ है वो सबका रिपेयरिंग काम हमारी डीप स्लीप में ही होता है, राइट? So, sleeping in a right way, regularly, peaceful sleep is mandatory. Again, it is one of the best and important pillar of health. I'm not saying 8 घंटा 10 घंटा सोना है, आप चाहे 6 घंटे सोए, but those 6 hours your sleep should be sound. आप सुबह उठते हो और you feel light, energetic, which indicates good health, right? So that is the like उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी एक साइन है जो हमारी बॉडी बोलता है. our body reflects it that way. When we are energetic, when we get up, yes, we are happy and healthy. It is the indication, right? Then emotions and thoughts, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, right? You can always read the books by Louise Hay. She is a wonderful writer and she cured her cancer by applying the rules of Mother Nature, by applying the thought process, thinking in a very positive way, affirmations, regular affirmations. अगर आपको कुछ चाहिए, किन डिजायर रखते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, उसको फील करते हो, वो मिलेगा ही, है ना. इट हैज टू कम टू यू. सो योर इमोशंस, एक एग्जाम्पल दूं, जिसको बहुत गुस्सा आता है, राइट? जिसको द पर्सन हु इज रेगुलरली गेटिंग एंग्री, तो उसका लीवर हमेशा स्ट्रेस्ड होता है ना. तो कोई बंदा जो हमेशा चिंता ही करता है, ऑलवेज वरी वरी वरी, so it indicates that the person's kidneys are to be taken care of. So how our thoughts, whatever emotions we have, it indicates the health of our body, of our inner organs. So emotions and thoughts again reflect the health of each and every organ of the body. तो ये सारी चीजें अगर लानी है तो रेगुलर मेडिटेशन. अब आधा घंटा हम सब फैमिली मेंबर्स को, हमारा वर्क कंटिन्यूसली, वी गिव टाइम, वी गिव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ देम, बट जस्ट कनेक्टिंग विथ आवर इनर सोल एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे इज मैंडेटरी. आप करके देखो, you will get tremendous benefit out of it, है ना. So sleep, self-awareness, exercise and right kind of diet, these are the 4 major pillars on which I do my treatment and on which I always suggest कि अगर ये 4 पिलर आपके सही है तो you are prone, you are going to get the best, vibrant and happy health.
Thank you, ma'am. Yeah, I'm open for all the questions. Yes, I request members to type in their questions in the chat box. Meanwhile, I request Dr. Bhavdeep Ganatra sir. As you all are aware that he is the person who is the pioneer in drafting this series, and with his help, we are able to have this series on health and fitness. So welcome, Dr. Bhavdeep Ganatra sir. Bhavdeep Ganatra sir is practicing in Ayurveda, and he is helping us. And in this COVID times, he has innovated one medicine, that is Ayog, and which is used by everyone, I guess, in so many hospitals and everywhere. So sir, welcome, and we request you to give your tips, as you have last time given tip on Prakriti. cough, Prakriti. So we request you to do the same. And as I remember that acceptance, and today's Doctor's Alka Yagnik's lecture, I can see that if you control your emotion, that is, if you accept everything, your issues related to health might be cured enoughly. So now Yes. I welcome Dr. Bhavdeep Ganatra sir. थैंक यू सो मच मिशन भाई एंड अल्पा याग्निक जी, आपने जो बहुत ही सुंदर बातें बताई, जो डे टू डे लाइफ में हेल्प विदाउट पिल, दवाई के बगैर कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसके कंसेप्ट्स आपने शेयर किए एंड वाज रियली यूजफुल फॉर एवरीवन। और WIRC की चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों 10 मिनट के अंदर आज मैं जो शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज टू रिमूव द फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन, फटीगनेस, डलनेस, मूड अपसेट होना, ये सारे जो डे टू डे के प्रॉब्लम है। और हर घर में एक बंदा तो ऐसा मिलेगा जो डिस्टर्ब तो है, और उसकी हमारी जो थीम है उसको जस्टिफाई करते हुए, विदाउट पिल एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, एक भी गोली अंदर नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों एक फॉर्मूला बनाया है मैंने आज चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट के दर्शकों के लिए स्पेशली, दैट इज फॉर्मूला 5/2। डॉक्टर गणात्रा का आयुर्वेद सीक्रेट फॉर्मूला है 5/2, 5/2, ठीक है। ये 5 चीजें आपको करनी है दिन में 2 बार, और कितने दिन के बाद आपको मुझे फीडबैक देना है, जस्ट विद इन 5 डेज। आज से 5 दिन बाद मुझे आप सबका फीडबैक चाहिए कि 5/2 का फॉर्मूला अगर आपने इंप्लीमेंट किया, ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो दिन में 2 बार आपको करनी है, और ऐसा 5 दिन करने के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ये फॉर्मूला सच में काम किया या नहीं किया, ये आपको मेरे साथ शेयर करना होगा। आज 50 से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे भीषण भाई, फनील भाई, अंजलि जी, कि 5 दिन के बाद कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये इतनी सारी मेहनत जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। 50% थिंग इज टू डिलीवर एंड द रिमेनिंग 50% इज टू इंप्लीमेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये 5 चीजें कौन सी है। इसका एक छोटा सा सूत्र है, अगर आपको गाना अच्छा लगता है, स्लोगन्स अच्छे लगते हैं, तो ये सूत्र मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया। खाना, चलना, याद कीजिएगा, खाना, चलना, चंपी। ओके, आप दोहराइएगा, आपके अगल बगल के लोग आपको शायद सुनेंगे घर में कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, खाना, चलना, चंपी। ओके, खाना, चलना, चंपी, स्नानम, शयनम। मैं रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, खाना, चलना, चंपी, स्नानम, शयनम। ओके, शयनम, वेरी गुड। और ये 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सुबह 30 मिनट्स, शाम को 30 मिनट। तो शुरुआत होती है खाने से। क्या खाना है? देखिए, लोगों को आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास आने में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि ये खाना बंद करवा देंगे। आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको ये खाना ही पड़ेगा। और क्या खाना है? आपने एक छोटी सी सुपारी जो होती है, सुपारी खानी नहीं है, मैं साइज के लिए बता रहा हूं, छोटी सी सुपारी के साइज की घर की बनी देसी मिठाई, सुखड़ी हो सकती है, मोहनथाल हो सकता है,
मगज हो सकता है, कुछ भी हो, 2 चीजें याद रखनी है। उसकी साइज छोटी सुपारी जितनी होनी चाहिए। जब आप गणेश स्थापन करते हैं तब जो सिंबॉलिक सुपारी रखते हैं ना, वो सुपारी के साइज की। और दूसरी कंडीशन है कि वो घर पे बनी हुई होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये हो गया खाना। छोटी सुपारी साइज की घर पे बनी हुई मिठाई आपको पहले मुंह में रखनी है और खानी है। और खानी कैसे है? मजे से खानी है। ऐसे खानी है जैसे आप उसका जूस पी रहे हो, उतना चबा के वो अंदर जाना चाहिए। तो 30 मिनट्स का ये पहला काम हो गया। ये 2 से 3 मिनट में आपका काम खत्म हो गया, खाना। दूसरी बात है चलना। अब आपको शुरू करना है चलना। कितना? 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट, जितना आपको ठीक लगे। कितनी स्पीड? जितनी आपको ठीक लगे। ओके। खाना, चलना। खाना आपने ऐसे खाया, ये छोटी सुपारी जैसी घर की बनी मिठाई आपने ऐसे खाई जैसे आपने उसको पिया है, आपने खाया नहीं है। इतना चबाने के बाद आपने अंदर लिया, 2-3 मिनट का काम खत्म हो गया। फिर आप निकल पड़े चलने के लिए। चलना आप अपने घर में चल सकते हैं, आपके सोसाइटी के सराउंडिंग में चल सकते हैं, आप पार्क में भी चल सकते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग इज चलना। इसमें वो नहीं चलेगा आपका, मतलब वो ट्रेडमिल नहीं चलेगा, साइकिल नहीं चलेगी, आपको चलना पड़ेगा। ठीक है? और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको ठीक लगे। खाना, चलना, चंपी। देखिए, अब आ गए हम आधे रास्ते पे। चंपी। चंपी मतलब सिर के ऊपर तेल की मालिश। ये 2 तरीके से होती है। एक तो आत्मनिर्भरता से, मतलब आप खुद करें, राइट? और दूसरी होती है अगर आपके संबंध परिवार के लोगों से अच्छे हैं, आपका संबंध परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा बिठाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इंसिस्ट करूंगा कि आप परिवार के किसी सभ्य के द्वारा ही ये करवाइए। इसका एक साइड इफेक्ट है, फिर वो भी बोलेंगे कि आपको भी करके देना पड़ेगा, बट कुछ साइड इफेक्ट अच्छे होते हैं, राइट? ये अच्छा वाला साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो खाना, चलना, चंपी। आप जैसे ही वॉक करके वापस आए, आपने शूज रिमूव कर दिए, फिर आप बैठ गए, और हो सके तो पालखी मार के, पलाठी लगा के आप बैठ जाइए। नाभि लॉक हो जाएगी, आप स्थिर हो जाएंगे, और आप नीचे बैठिए। चंपी करने वाला बंदा आपके बेड के पलंग के ऊपर बैठेगा, और फिर एग्जैक्टली 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट की होगी चंपी। चंपी में तेल यूज होता है, और तेल नाम कैसे पड़ा है? जो तिल से निकलता है उसे तेल कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया तेल कौन सा है? तिल का तेल। तेल का नाम जिससे पड़ा है वो तिल का तेल। तो प्लेन तिल तेल भी चलेगा। આપણું ગુજરાતીમાં સાદો તલનું તેલ ચાલશે. And if you wish to use any hair oil, any Ayurvedic hair oil, you need to make sure, जैसे अल्पा याग्निक जी ने बताया ना, कि इंग्रेडिएंट एक बार देख लिया कीजिए। अच्छा पैकिंग देख के वो मोहजाल में मत फंस जाइए। तो इंग्रेडिएंट देखिए, कोई भी हेयर ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके बेस ऑयल में तिल तेल या कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल होना चाहिए। मिनरल ऑयल नहीं चलेगा। और कुछ नहीं मिलता तो तिल का तेल ले लीजिए, वो हर जगह अवेलेबल है, आपके किराने स्टोर पे भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, राइट? खाना, चलना, चंपी, 3 चीजें हो गई। छोटी सी मिठाई खाई, फिर आप वॉक के लिए चल दिए, और वापस आके आप तुरंत बैठ गए चंपी करवाने के लिए। खाना, चलना, चंपी, स्नानम। अभी चंपी करवाने के तुरंत बाद आपको गुनगुने गर्म पानी से स्नान करना है। ओके। गुनगुने गर्म पानी से स्नान करना है। अगर शावर चला सकते हैं तो वंडरफुल। शावर नहीं है तो आप गुनगुना गर्म पानी लेके बाल्टी में लेकर के आप स्नान कर लीजिए। साबुन का यूज मैं एडवाइस नहीं करता ये फॉर्मूला के अंदर। मुझे चाहिए आप, और आपके साथ चाहिए गर्म पानी, और आप स्नान कर लीजिए। 5 से 10 मिनट उसमें लग जाएंगे। स्नान करने के बाद आप अच्छे से शरीर को पोंछ लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, और फिर आपको करना है शयनम। क्या करना है? सोना। नहीं, वो 54,000 रेट वाला सोना नहीं, उससे भी महंगा वाला सोना, आंखें बंद करके सोना। ओके। तो स्नान करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए सोना है। जो योग की प्रैक्टिस करते हैं, आसन की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें शवासन के बारे में पता होगा। ये पूरा एक गाइडेड शवासन होता है। वैसा भी आप अपने आप कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है तो भी आप बेड के ऊपर, रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए। घर के लोगों को बोल दीजिए कि 15-20 मिनट मुझे कोई उठाए नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, वाइब्रेशन पोर्ट पे भी मत रखिएगा। आंखें बंद करके हाथ
आकाश की ओर होने चाहिए, पैर ऐसे टिल्ट होने चाहिए, पूरा शरीर रिलैक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए आपको सोना है। दैट इज शयनम। सुबह एक बार और शाम को एक बार, मतलब दिन में कितनी बार हुआ? 2 बार। ये 5 चीजें सुबह आधे घंटे में हो जाएगी, शाम को आधे घंटे में हो जाएगी। बाकी के 23 आवर्स आपने अपनी जो भी लाइफस्टाइल बना रखी है या मजबूरी में बन गई है, जो आपको भी पता है कि सही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, वो जेल में आप फंसे रहिए। बट ये अगर आपने फॉर्मूला सुबह और शाम को कर दिया, और ऐसा आपको करना है लगातार 5 दिन के लिए, और 5 दिन आपने ऐसा लगातार अगर किया और करने के बाद आपने आपका एक्सपीरियंस ये चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट के व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल में हमारे साथ शेयर किया, और अगर बिशन भाई और अंजलि जी और फैनिल जी अगर तय करें कि पहले 11 लोगों को हम कुछ प्राइज देंगे या गिफ्ट देंगे या उनको उनका अवार्ड से सम्मान करेंगे कि इतनी मेहनत से ये जो सारा ज्ञान यहाँ से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उस पर अमल जो करते हैं, उनको एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनका एक सर सम्मान भी होना चाहिए। आपका च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश वुड बी द बेस्ट एंटी एजिंग थिंग, ये भी हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर आप या आपके परिवार के जो भी लोग हैं, जिनको टेंशन है, जिन्हें डर लगता है, डर बहुत सारी चीजों से लगता है। कोरोना से भी पहले डर लगता था, अब लोगों को वैक्सीन से डर लग रहा है। कुछ लोगों को ये किसान के आंदोलन से डर लग रहा है। तो डरने की बहुत सारी वजह लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा, डर आ गया। व्हाट्सएप देखा, डर आ गया। किसी पड़ोसी को, किसी के रिलेटिव को अस्पताल में दाखिल किया, डर आ गया। तो डर एक मैग्नेट जैसा बन जाता है। एक चीज से जो डरता है ना, वो 10 और चीजों से डरने लगता है। बट ये तो प्रॉब्लम्स है, ये सारे ताले हैं। हमारा फोकस कहाँ पे है? सोल्यूशन पे। हमारा फोकस कहाँ पे है? ताले की चाबी पे। तो आज मैंने जो आपको चाबी बताई है, डॉक्टर गणात्रा का फॉर्मूला 5/2, और लगातार 5 दिन के लिए, और 5 दिन के बाद हम इसका ऑडिट करेंगे, क्योंकि ये चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट है, तो हर एक का एक इंडिविजुअल ऑडिट होगा और हम इसको स्कोरिंग भी कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मैं आपको वर्बल गारंटी देता हूं। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मनी बैक गारंटी, क्योंकि मनी इन नहीं हुआ इसलिए बैक नहीं कर सकते, वरना मनी बैक गारंटी भी हम इसके साथ दे सकते हैं। कंडीशन बस आपको प्रामाणिकता से इस चीज के ऊपर काम करना है और हमें बताना है कि क्या होता है। डर चला जाएगा, गुस्सा चला जाएगा, मूड अपने आप हैप्पी हो जाएगा। मतलब घर के लोगों को लगेगा कि यार इसके ऊपर कुछ जादू टोना हो गया। पूरा दिन नेगेटिव बातें करता था, तो सुबह से शाम तक हंसती रहती, कोई कंप्लेन नहीं है इसकी, कोई नेगेटिव बात नहीं आई, सभी चीज में यस बोले जा रहा है, खुश रहता है। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये कमेंट अड़ोस पड़ोस के लोगों से आएगी, इतनी गारंटी मैं आपको ये 5/2 फॉर्मूला 5 दिन के करने पे बता रहा हूँ। सो दैट इज ऑल from my end for today's time. It's already 1 o'clock. So over to Bishan bhai. Yes, sir. Thank you so much for giving your precious time and advising us and motivating us. And yes, whoever will do this program, we assure that we will give them 500 grams of Chyawanprash of Bhavdeep Bhai's clinic. Ma'am, Alpa ma'am, there are some questions. So if you want to just give the answer. Yes, ma'am. Over to you. Someone has asked about the gout. मैडम आप म्यूट है अभी। Okay. Am I audible? Yes. Yeah. Just a minute. Alpa ma'am, can you please guide? Yes, I'm just going through the questions. That is what I'm reading. Okay. Please guide on reducing gout, the problem of uric acid built up. Okay. Basically, gout is a problem where body has high amount of protein, I will say, which it is not able to dispose of. बॉडी में से एक्स्ट्रा ज्यादा यूरिक एसिड कब जमा होता है? जब हमारी प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो सही काम नहीं करता,
तो at that time it happens, right? और वो कोई भी हमारे excess of acidic waste gets deposited, वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे कोई भी जॉइंट्स में, एंड ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड क्या करता है वहां पे, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, सूजन वगैरह लेके आता है, और वी ऑलवेज हैव पेन. So what you need to do is you need to flush out, as I am always saying, detoxify. Detoxification will help to flush out the excess of protein or excess of acidic waste from the body, right? So we always need कि एक सिंपल सी टिप बोलूं, सफेद पेठे का जूस जो रेगुलरली आप पिएंगे तो एसिडिक वेस्ट बहुत जल्दी निकल जाता है. So I always suggest सफेद पेठे का जूस whoever have pain related issues, right? तो they can always have 200 to 300 grams का सफेद पेठे का जूस and avoid all the protein and avoid all the packed food. There are some more questions, ma'am, but due to paucity of time, I request those participants to directly contact to you and or Bhavdeep Bhai, and I guess they will get their solutions of respective problems. So friends, we at Ahmedabad branch are thankful to all of you for connecting and participating in today's virtual meeting. On next Sunday, we are going to have Sapna Vyas, who is a fitness coach, at 11:30 to 12:30. And yes, Bhavdeep sir is going to be there as a mentor to and curator to this series. So once again, Alpa ma'am and Bhavdeep sir, we at Ahmedabad branch are very much thankful to both of you for sparing your time, sharing your knowledge and experience, so our participants can have a better and healthy life. So thank you very much. We Thank you, here Mishan will bhai. Thank you. conclude For this your Thank you session. so much. Thank you. I hope all are now ready for the lunch. So please proceed at your home. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.